Hey guys, this is Ayush Gupta. Thanks for watching my previous video, and if you have missed my previous video, the link is given below in the description. Click it and go through it, and please come back to the second session again. So this second video is about SSB tips after getting screened in. First of all, congratulations to all those guys that have got screened in. So once those guys who are screened in, they will be allotted barracks. But before doing so, they have to fill up a lot of paperwork. So in the paperwork, they would be required to fill personal information questionnaire, which is PIQ form. In this PIQ form, they will ask about your mother, father, their profession, their salary, their age, and then your personal information. In the personal information, they will ask about your 10th, 12th schooling, marks, grades, your achievements, your hobbies, interests. So in this, आप overwriting मत करिएगा, because once you overwrite, it shows lack of quality in you, that you are already confused about interests, hobbies and achievements. And try to be honest with yourself, because जितने भी तीनों फॉर्म्स हैं, टोटल 5 फॉर्म्स भरते हैं आप, जो उनमें से 3 फॉर्म्स आपके तीनों एग्जामिनर्स के पास जाते हैं. सो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा उन लोगों को, और जो आप बोल रहे हैं और जो आप शो कर रहे हैं अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, सो आपको खुद आप डिसएडवांटेज पे होंगे. Once the PIQ form is done, then you all will move for dinner. So once dinner is done, you will go to the barracks. In the barracks, you will see different people from different region of country. Please get friendly with them, and you can discuss the next day strategy. So in the next day, there would be the test of psychology. So the day 2 would be psychological test, and in day 3 would be your interview, and the day 4. So let's begin with the first part of the psychological test, that is picture perception test. In the picture perception test, आपके पास 12 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी. उसमें से 11 पिक्चर्स विजिबल होंगी ब्लैक एंड वाइट. जो लास्ट स्लाइड होगी वो कम्प्लीटली ब्लैक होगी. तो इसके अंदर आपको 15 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स के लिए फ्लैश होती है पिक्चर, और 3 मिनट्स मिलते हैं टोटल, इंक्लूडिंग दैट 30 सेकेंड्स. उसमें आपको स्टोरी लिखनी होती है. सो अगेन, ग्रामर डज नॉट मैटर. ट्राई नॉट टू बी नेगेटिव इन द स्टोरी. प्रैक्टिस सम ऑफ द स्टोरी राइटिंग. सो इन दिस पिक्चर आपको दिख रहा है 2 लेडीज हैं. तो इसके अंदर हम इसको प्रेजेंट में लाएंगे. जो ये पिक्चर दिख रही है तो पास्ट में दिखाएंगे. देयर वॉज अ यंग गर्ल who was studious, working hard. She wanted to become a scientist, and finally, after working 10 years, she became a scientist in DRDO, and now she is making a powerful vaccine for some infection in front of her supervisor. And finally, in the future tense में जाएंगे, and her vaccination become successful, and she got rewarded for the vaccine from the President of India. So this shows कि आप optimistic हैं, आप कोई नेगेटिव स्टोरी नहीं बना रहे. इस तरीके से आपके पास 11 पिक्चर्स आएंगी. आपको एक पॉजिटिव स्टोरी, पॉजिटिव माइंडसेट और या न्यूट्रल माइंडसेट दिखाना है. अगेन, जो लास्ट स्लाइड होगी वो ब्लैंक स्लाइड होगी. उसके अंदर आपको स्टोरी खुद लिखनी पड़ेगी. 11 में से आप कोई भी इमेज उठा के बना सकते हैं, या 11 स्टोरीज कंबाइन करके लिख सकते हैं. ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ. उसके बाद आता है आप लोगों का वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, दैट इज WAT. अगेन, इसमें 60 वर्ड्स होंगे. टाइम लिमिट होगी हर वर्ड में 15 सेकेंड्स होते हैं. इसमें आपको एक वर्ड दिया जाएगा और आपको एक सेंटेंस बनाना होगा. ज़रूरी नहीं है सेंटेंस पूरा ग्रामेटिकली सही हो. एक वर्ड दे रखा है, उसके करस्पॉन्डिंग आप दूसरा मीनिंग भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा. ट्राई टू डू एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल विद इन द टाइम लिमिट. और ओवर राइटिंग मत कीजिएगा. अगेन, इट गिव्स अ नेगेटिव इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर. बी नेचुरल, बी ऑनेस्ट. चीटिंग मत करिएगा. कुछ वर्ड्स जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको. एडवेंचर, तो एडवेंचर का लिख सकते हो आई लाइक एडवेंचर, या खाली लिख सकते हो रिस्क टेकिंग इज माई वे, या रिस्क टेकिंग. सो और अदर वर्ड्स आते हैं गन. सो गन में जो मैंने लिखा, इट इज़ टू प्रोटेक्ट अदर्स. कुछ आप लोग भी सोच सकते हो टू शूट, बट टू शूट थोड़ा नेगेटिव सेंस है, न्यूट्रल सेंस है. टू प्रोटेक्ट अदर्स इज अ पॉजिटिव सेंस. बेबी, डार्लिंग, उसमें आप अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड मत लिखिएगा. बी प्रैक्टिकल इनफ. यू कैन राइट माई डार्लिंग इज़ माई कैरियर, और माई बेबी को आप इनोसेंस से शो कर सकते हैं. एंड अगेन, एडवेंचरस से ऐसा भी हो सकता है कि सेम वर्ड्स आ जाएं,
जैसे एडवेंचर, एडवेंचरस। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा जो आपने लिखा है पहले वही आप दूसरे में लिखें। कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आइडियाज़ नहीं होने चाहिए। ये बहुत कॉमन है कि वर्ड्स रिपीट होते हैं, जैसे बेबी एंड डार्लिंग थोड़ा सेम लगता है बट उसमें भी आपको सेम ही आइडिया लिखना चाहिए। और दिस शोज योर कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट्स। तो आपको एक बार WAT में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से भरिए और वो राइटिंग बिल्कुल मत करिएगा। दिस टेस्ट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, that is SRT test. In this again you will have 60 questions to answer. You have to write a complete sentence giving the reaction. The reaction should be again honest. Do not cheat or do not try to copy others' reaction because it's your reaction that will matter. The psychologist will again know that you have cheated or you are tutored. तो सारे रिएक्शंस आपके ओरिजिनल होने चाहिए जहाँ तक आप लिख सकें। अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाइए, टाइम मत वेस्ट करिए। आउट ऑफ 60 ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम, अराउंड 45 मैंने अटेम्प्ट करे थे। और जो रिएक्शंस थे, कई सिचुएशंस रिपीट होती हैं तो रिएक्शन भी सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अपनी मदर या मम्मी के साथ जा रहे हैं किसी फुटपाथ पे, आप देखते हैं कि 4 गुंडे लोग आपके पास आ रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सो रिएक्शन ये लिखा कि आई कॉल्ड अप द पुलिस एंड चेंज्ड माई वे। तो आप ये रिएक्शन मत लिखिएगा कि मैं अकेला उनसे भिड़ने चला गया, तो ये रिएक्शन प्रैक्टिकल नहीं है। तो जितने भी रिएक्शंस आप लिखें प्लीज़ बी थॉटफुल अबाउट इट और उनमें प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। सो द लास्ट टेस्ट फॉर द साइकोलॉजिकल टेस्ट इज डिस्क्रिप्शन टेस्ट। मुझे 4 क्वेश्चंस ये दिए थे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, क्वालिटीज ऑन विच यू वांट टू वर्क अपॉन। अंदर भी ट्राई टू बी ऑनेस्ट, ट्राई टू जेन्यून, do prepare your answers well in advance. Questions are not fixed, but generally जो ये questions होते हैं ये आपके ऊपर ही होते हैं। Teachers, parents, friends, what are the qualities of your best friend you like? So इसके अंदर मैंने भी जो आंसर लिखा हुआ था एक रात पहले लिख लिया था। What about my parents think? What about your mother think about you? Generally fathers are strict. Be again honest in your answers. For your teachers, try to show the qualities that you show in your college or school. Like if you are curious or if you are bunk the class, tell openly that you bunk. So do introspect yourself properly so that you can write well. And the answers should be like 10 lines to each questions. The time is limited. You have 15 minutes to write all 4 questions. And although they tell you the 15 minutes, but they are not 15 minutes. It is always less time. So they want to check out how much you can work in the stress conditions. This was my day 2 experience at SSB. If you have any further suggestions, please write in the comment box. I will do work upon it. Please hit the like button if you like it. The next video for the day 3 would be of my personal interview.